کا پڑھنا ہے، الگ سے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ بتاؤ، یہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ ایک غیر مقلد سے میں نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، سورہ فاتحہ مقتدی نہیں پڑھے گا تو نماز ہی نہیں ہوئی، تو حضرت ابو بکرہ کی نماز کیسے ہو گئی؟ انہوں نے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، کیا انہوں نے رکوع میں سورہ فاتحہ پڑھ لی؟ انہوں نے سجدے میں سورہ فاتحہ پڑھی؟ کب انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی؟ اور جب سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو ان کی نماز باطل ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی ہری جھنڈی دے رہے ہیں، زادک اللہ حرصا ولا تعود۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کی نماز صرف ہوئی نہیں بلکہ نبی نے دعا فرما دی تو اللہ کی بارگاہ میں ان کی نماز مقبول ہو گئی ہی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ سورہ فاتحہ انہوں نے کب پڑھی؟ غیر مقلد نے کہا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے رکوع میں سورہ فاتحہ پڑھ لی ہو۔ میں نے کہا کہ تم اصلی اہل حدیث نہیں لگ رہے ہو، اگر اصلی اہل حدیث ہوتے تو حدیث پڑھ کر سناتے کہ فلاں حدیث میں ہے کہ انہوں نے رکوع میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ لیکن میرا چیلنج ہے، ایک بھی حدیث میں دکھا نہیں سکتے کہ انہوں نے رکوع یا سجدے میں سورہ فاتحہ پڑھی ہو، اس لیے کہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت علی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قراءۃ القرآن فی الرکوع والسجود، رسول پاک نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ جب رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے تو کوئی صحابی رسول رکوع میں کیسے قرآن پڑھ سکتا ہے، سجدے میں کیسے قرآن پڑھ سکتا ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، امام کا پڑھنا یہی مقتدی کا پڑھنا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں کچھ لوگ آئے امام اعظم کی خدمت میں مناظرہ کرنے کے لیے، کہا کہ ہم آپ سے اس مسئلے پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا کس مسئلے پر مناظرہ؟ کہا کہ آپ امام کے پیچھے مقتدیوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، قرات خلف الامام پہ ہم آپ سے مناظرہ کریں گے۔ امام اعظم نے فرمایا تم اتنے سارے لوگ ہو اور میں اکیلے ہوں، اتنے سارے لوگوں سے اکیلے میں کیسے مناظرہ کر پاؤں گا، کیسے میں بات کروں گا؟ ایسا کرو کہ تم میں جو سب سے زیادہ ہوشیار اور عقل مند باصلاحیت ہو اس کو تم اپنا امام اور نمائندہ بنا دو، اس کا کہنا تمہارا کہنا ہو، اس کا اقرار تمہارا اقرار ہو، اس کا انکار تمہارا انکار ہو۔ انہوں نے کہا بات تو بالکل صحیح کر رہے ہیں، اتنے سارے لوگوں سے آپ اکیلے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم اپنے میں سے جو سب سے زیادہ قابل اور باصلاحیت ہے اس کو ہم اپنا امام اور نمائندہ بنا دیتے ہیں، ہماری طرف سے وہی نمائندگی کرے گا، اس کا کہنا ہمارا کہنا ہوگا، اس کا اقرار ہمارا اقرار ہوگا، اس کا انکار ہمارا انکار ہوگا۔ انہوں نے اپنے ایک ذہین و فطن تیز ترار آدمی کو آگے بڑھا دیا اور کہا کہ یہی ہمارا مناظر اعظم ہے، اس سے آپ کو مناظرہ کرنا ہے۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ اب تم کیا مناظرہ کرو گے؟ تم مناظرہ ہار چکے ہو اور میں مناظرہ جیت چکا ہوں۔ انہوں نے کہا مناظرہ شروع بھی نہیں ہوا تو کیسے آپ مناظرہ جیت گئے اور ہم مناظرہ ہار گئے؟ امام اعظم نے فرمایا یہی بات تو کتنے دنوں سے میں سمجھا رہا ہوں کہ جب سارے نمازیوں نے مل کر کے ایک آدمی کو اپنا امام بنا لیا تو اس کا پڑھنا نمازیوں کا پڑھنا ہے، اس لیے الگ سے نمازیوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، امام کا پڑھنا یہی مقتدی کا پڑھنا۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک بہت مضبوط اور مستحکم ہے۔ دنیا کا کوئی طبقہ عمل بالحدیث کے معاملے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ہمسری اور برابری نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فقہ حنفی اور مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنی بارگاہ میں ایسی قبولیت سے سرفراز فرمایا کہ امام عبد الوہاب شارانی نے میزان الشریعت الکبریٰ میں تحریر فرمایا کہ یہ چاروں مذاہب حق پر ہیں، چاہے شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے حنفی ہو، یہ چاروں مسلک حق پر ہیں اور قیامت کے قریب تک یہ مسلک باقی رہیں گے، لیکن قرب قیامت میں ایک ایک مسلک ختم ہوتا چلا جائے گا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا ایسا مسلک ہے جو صبح قیامت تک باقی رہے گا، یہ کبھی نہیں ختم ہوگا۔ حضرت امام مہدی بھی آئیں گے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق پیروی کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت امام مہدی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہوں گے، وہ مقلد نہیں ہوں گے، وہ خود مجتہد ہوں گے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے
मसाइल पर अमल करेंगे। वजह यह होगी कि नबी की बारगाह से उन्हीं हदीसों पर अमल करने का इशारा होगा जिन हदीसों पर इमाम आज़म ने अमल किया है। इस तरह दोनों का अमल एक दूसरे के मुताबिक हो जाएगा। इसलिए इमाम आज़म अबू हनीफा का अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो चुका है, आपका मसलक अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो चुका है। सुबह क़यामत तक इमाम आज़म अबू हनीफा का मसलक बाकी रहेगा। और आज पूरी दुनिया के मुसलमानों के हालात का जायजा ले लो। दुनिया के 90% मुसलमान आज भी हनफी हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा के मानने वाले हैं। 10% में शाफी भी हैं, मालिकी भी हैं, हम्बली भी हैं। लेकिन दुनिया के कोने कोने में चले जाओ, 90% मुसलमान आज भी हनफी हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा की तकलीद करने वाले। इमाम आज़म अबू हनीफा को अल्लाह ने वो मकबूलियत अता फरमाई और उसकी वजह क्या है? इमाम आज़म अबू हनीफा के हक में हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने दुआ फरमाई। जब मुल्क फारिस फतह हुआ और इमाम आज़म अबू हनीफा के दादा हज़रत नुअमान मुसलमान हुए। इमाम आज़म के दादा का नाम भी नुअमान था और आपके वालिद का नाम साबित है। जब आपके दादा नुअमान मुसलमान हुए और उसके बाद कूफे में आकर आबाद हो गए तो उनके घर में हज़रत साबित पैदा हुए। जब हज़रत साबित जवान हुए और हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने कूफा को अपना दारुल खिलाफा बनाया और कूफा में रहने लगे तो हज़रत साबित बड़ी पाबंदी से हज़रत अली की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले जाते, इक्तिसाब फैज़ करते, उनकी खिदमत करते। एक दिन हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने दुआ फरमा दी कि परवरदिगार आलम तेरी नस्ल में एक ऐसा बच्चा पैदा फरमा दे जो अपने इल्म से पूरी दुनिया को मुनव्वर व मुजल्ला कर दे। उसी साबित के बेटे का नाम नुअमान है जिसको इमाम आज़म अबू हनीफा कहा जाता है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा कौन है? नबी के मौजज़ात में से एक मौजज़ा है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है और अली की करामतों में से एक जिंदा करामत का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम आज़म अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा को अल्लाह ने वो कबूलियत अता फरमाई, बड़े बड़े उलमा और मशाइख आपका एहतराम करते, आपके असातिज़ा भी आपका ऐसा एहतराम करते कि मालूम ही नहीं होता कि ये इमाम आज़म अबू हनीफा उनके शागिर्द हैं। अपने असातिज़ा की तरह आपके असातिज़ा अपने शागिर्द इमाम आज़म अबू हनीफा का एहतराम करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम आज़म अबू हनीफा को मुत्तकी और परहेज़गार भी इतना ज़बरदस्त बनाया था कि पूरी पूरी रात इमाम आज़म अबू हनीफा अल्लाह की इबादत और रियाज़त में सर्फ कर देते थे। आपके पड़ोसी का बयान है, अब्बा इमाम आज़म अबू हनीफा का जब इंतकाल हुआ तो आपका पड़ोसी मजूसी अपने बाप से कहता है, अब्बा क्या बात है कि इमाम आज़म के घर में रात को पहले एक पेड़ नजर आता था और सुबह को गायब हो जाता था, अब वो पेड़ रात की तारीकी में नजर नहीं आता है। उसके बाप ने कहा वो कोई दरख्त और पेड़ नहीं था, इमाम आज़म अबू हनीफा थे जो पूरी पूरी रात क़याम करते थे और तुमको लगता था कोई दरख्त खड़ा है और सुबह को वो दरख्त नजर नहीं आता था। ऐसे आबिदो ज़ाहिद थे कि 40 साल तक मुसलसल इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। जिस जेल खाने में आपका इंतकाल हुआ 80 लाख खत्म कुरान इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया था। बताओ इतना बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार दुनिया में कोई पैदा हुआ है? हजरत इमाम आज़म के तक़वा का ये आलम था कि सिर्फ हराम चीजों से नहीं बचते थे बल्कि मुश्तबा और मशकूक चीजों से भी इमाम आज़म बचा करते थे। आपका जो मुजारिब था जिससे मिलकर आप कपड़े की तिजारत किया करते थे, एक मरतबा आपने कपड़ों का गट्ठर अपने शरीक को देते हुए कहा कि इस कपड़े को इतने दाम में बेच देना, लेकिन इसमें एक कपड़ा ऐसा है जिसमें कुछ ऐब है, जब उस कपड़े को बेचना तो ऐब को बता करके बेचना, क्योंकि ऐब को छुपा करके कपड़ा बेचना ये शरीयत के हुक्म के खिलाफ है। इसलिए तुम उसका दाम घटा करके और ऐब बता करके बेचना। शरीक माल लेकर के गया, लेकिन हमा हमी में रवा रवी में सारे थनों को बेचता चला गया, यहां तक के सारे थन बिक गए और उसके बाद कोई कपड़ा नहीं बचा और जो कपड़ा ऐबी था उस ऐबी थान को भी उसने बेच दिया और ऐब बताना भूल गया।
जब माल लेकर के आया, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की खिदमत में माल पेश किया तो कहा हुजूर सारे गट्ठर बिक गए, सारे थान बिक गए। इमाम आजम ने कहा था कि उसमें एक थान ऐसा भी था कि जिसमें कुछ ऐब था। मैंने बताया था कि जब इसको बेचना तो ऐब को जाहिर करके बेचना और दाम घटा करके बेचना। उसने कहा हुजूर रवा रवी में उसी दाम पर सारे थान बिक गए, सारे कपड़े बिक गए। मैंने ऐब बताना तो भूल गया, पैसा कम करना भूल गया। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कि अब ये पूरा माल फकीरों पर सदका कर दो, अब इसमें से एक दिरहम भी मैं अपनी जात पर खर्च नहीं करूंगा। इतना बड़ा मुत्तकी और परहेजगार दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ कि मशकूक चीजों से भी, मुश्तबा चीजों से भी बचता हो। हालांकि वो नाजायज और हराम नहीं था, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा के तकवा और दयानत के खिलाफ था। इसलिए इमाम आजम अबू हनीफा ने पूरे माल को अल्लाह की बारगाह में सदका कर दिया और एक दिरहम भी अपनी जात पर खर्च करना मुनासिब नहीं समझा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के तकवा का ये आलम है कि आप अपनी दरसगाह में बैठकर निजासत खफीफा और निजासत गलीजा का मसला बयान कर रहे थे और आपने फरमाया कि अगर कपड़े के चौथाई से कम में निजासत खफीफा लग जाए तो उसके होते हुए नमाज हो जाती है। निजासत खफीफा जिसकी निजासत में इख्तलाफ हो, जैसे भैंस का पेशाब निजासत खफीफा है, गाय का पेशाब निजासत खलीफा है। जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उसका पेशाब निजासत खफीफा है, क्योंकि बाज़ दलाइल से ये साबित होता है कि वो पेशाब पाक है और बाज़ दलाइल से ये साबित होता है कि पेशाब नापाक है। और जब किसी चीज में हिल्लत और हुर्मत का इख्तलाफ हो जाए तो हुक्म बहुत हल्का हो जाता है, इसलिए उसको निजासत खफीफा में रखा गया है। अगर कपड़े की चौथाई से कम में निजासत खलीफा लग जाए तो उसके होते हुए नमाज हो जाती है। इमाम आजम अबू हनीफा ने अपनी दरसगाह में, अपनी मजलिस में ये मसला बयान किया और जब आप आ रहे थे तो रास्ते में एक बैल पेशाब कर रहा था और उसकी कुछ छींट आपके जुब्बा शरीफ पर पड़ गई। इमाम आजम अबू हनीफा फौरन दरियाए दजला के करीब पहुंचे, पूरा जुब्बा उतारा और उस जुब्बे को दरियाए दजला में डालकर धोने लगे। आपके शागिर्दों ने कहा हुजूर अभी अभी आपने तो ये मसला बताया है कि कपड़े के चौथाई से कम में निजासत खफीफा लग जाए तो उसके होते हुए नमाज हो जाती है, फिर धुलने की क्या जरूरत थी? आप पूरे जुब्बे को दरियाए दजला में धुल रहे हैं। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया दरसगाह में जो मैंने बयान किया वो फतवा था और जो कर रहा हूं ये मेरा तकवा है। मेरा तकवा गवारा नहीं करता कि मेरे जिस्म पर और मेरे जुब्बे पर पेशाब का एक कतरा भी पड़ा हो और मैं उसके होते हुए नमाज की अदायगी करूं। इमाम आजम अबू हनीफा ऐसे ज़हीन व फतीन थे कि आपके शागिर्दों के बराबर भी बड़े बड़े इमाम न हो सके। एक मर्तबा हजरत इमाम मोहम्मद इमाम शाफी के यहाँ मेहमान हुए और दोनों खालाजाद भाई हैं, उनके घर मेहमान हुए। पूरी रात हजरत इमाम मोहम्मद बिस्तर पर करवटें लेटे रहे और हजरत इमाम शाफी पूरी रात इबादत और रियाजत करते रहे। जब सुबह की अजान होती है हजरत इमाम मोहम्मद अपने बिस्तर से उठते हैं और सीधे मस्जिद में चले गए नमाज पढ़ने के लिए। हजरत इमाम शाफी उठे और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए। नमाज के बाद जब इमाम शाफी वापस आते हैं तो फरमाते हैं कि मोहम्मद तुमको वजू बनाते मैंने नहीं देखा, जबकि ये देखा कि पूरी रात तुम बिस्तर पर पड़े रहे। क्या बात है कि सुबह को तुम सोकर उठे तो तुमने वजू नहीं किया और सीधे मस्जिद में चले गए। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हाँ मैंने भी देखा कि तुम पूरी रात अल्लाह की इबादत और ज़ियादत कर रहे थे और मैं पूरी रात बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन ये ना समझो कि बिस्तर पर मैं सोया था तो नींद से सोया था, महज आंखें बंद थी लेकिन मेरा दिल बेदार था। तुम पूरी रात इबादत करते रहे और मैं पूरी रात मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज करता रहा। तुम्हारे यहाँ इसी बिस्तर पर सोकर 1000 मसाइल का मैंने इस्तिंबात और इस्तिखराज किया है। तुम तो पूरी रात अल्लाह की इबादत और रियाजत करते रहे। तुम्हारी इबादत से सिर्फ तुमको फायदा मिलेगा, लेकिन मैंने जिन मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज किया है सुबह क़यामत तक उम्मत मोहम्मदिया को उसका फायदा मिलता रहेगा। मैंने वो काम किया कि पूरी उम्मत को फायदा मिले और तुमने वो काम किया जिससे सिर्फ तुम्हारी जात को फायदा मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसाद अहमद साहब किबला हजरत इमाम आजम के शागिर्द हैं हजरत इमाम अबू यूसुफ, बहुत बड़े इमाम हैं, मुज्तहिदीन में आपका शुमार होता है।
ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ مسئلہ پوچھا کہ حضور میں نے دھوبی کے ہاں اپنا کرتا دھلنے کے لیے دیا تھا، اپنا کپڑا دھلنے کے لیے دیا تھا اور کپڑا دھوبی کے یہاں سے گم ہو گیا، لیکن دھوبی مجھ سے مزدوری مانگ رہا ہے، دھلائی مانگ رہا ہے، تو کیا دھوبی شرعاً مزدوری کا مستحق ہے جبکہ اس کے یہاں سے میرا کپڑا گم ہو چکا ہے؟ حضرت امام ابو یوسف نے جواب دیا کہ اس کو مزدوری نہیں ملے گی۔ تو پوچھنے والے نے کہا آپ نے غلط مسئلہ بتایا۔ حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا تب اس کو مزدوری دی جائے گی؟ تو کہا کہ یہ بھی مسئلہ غلط۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ عجیب قسم کا سائل ہے، سوال بھی کرتا ہے اور مجھ کو غلط بھی ٹھہراتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کو مزدوری دی جائے گی، تو کہا یہ غلط، اور مزدوری نہیں دی جائے گی، تو کہا یہ بھی غلط۔ تو امام ابو یوسف نے کہا تم ہی بتاؤ کہ کیا صحیح جواب ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو صحیح جواب نہیں بتاؤں گا۔ حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا کہ نہ بتاؤ، میرا استاد ابھی زندہ ہے، دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ بھی زندہ ہیں، میں امام اعظم سے پوچھ لیتا ہوں کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف بھاگتے ہوئے جیل میں آئے، اور اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ جیل میں بند تھے۔ اور کیوں بند تھے؟ اس لیے کہ ان کو قضا کا عہدہ دیا گیا۔ بادشاہ نے کہا، خلیفہ نے کہا کہ تم قاضی بن جاؤ، آپ نے کہا کہ میں قاضی نہیں بنوں گا۔ خلیفہ نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ امام اعظم نے کہا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹے کو قاضی بنانا جائز نہیں ہے، اس لیے مجھ کو قاضی نہ بناؤ، اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں تو اس بنیاد پر بھی مجھ کو قاضی نہیں بنانا چاہیے۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو بھی میں قاضی نہیں ہو سکتا، اور اگر میں سچا ہوں تو بھی میں قاضی نہیں ہو سکتا، میں اس عہدہ قضا کو قبول نہیں کر سکتا۔ اسی میں آپ کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت امام ابو یوسف جیل میں پہنچے اور کہا حضور ایک بڑا نیا مسئلہ آ گیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس کا کیا جواب دیا جائے۔ امام اعظم نے کہا کون سا مسئلہ آ گیا ہے؟ امام ابو یوسف نے کہا کہ ابھی ایک سائل آیا تھا اور اس نے پوچھا کہ دھوبی کو میں نے کپڑا دیا تھا دھلنے کے لیے، دھوبی کے یہاں سے وہ کپڑا گم ہو گیا اور دھوبی مزدوری مانگ رہا ہے، دھوبی کو مزدوری دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ امام اعظم نے کہا تم نے کیا جواب دیا؟ حضرت امام ابو یوسف نے کہا کہ میں نے یہ جواب دیا کہ مزدوری نہیں دی جائے گی۔ تو اس سائل نے، امام اعظم نے کہا کہ تم نے غلط جواب دیا۔ تو حضرت امام ابو یوسف نے کہا کہ حضور تب مزدوری اس کو دی جائے گی؟ امام اعظم نے کہا یہ بھی تمہارا جواب غلط ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں حضور آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو وہ کہہ رہا ہے، اس نے بھی کہا کہ تمہارا دونوں جواب غلط اور آپ بھی وہی فرما رہے ہیں، تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ امام اعظم نے فرمایا کہ اگر تم دماغ پر زور دو تو اس کا صحیح جواب تم کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ اگر کپڑا دھلنے کے بعد گم ہوا تو مزدوری دی جائے گی، اور دھلنے سے پہلے گم ہوا تو مزدوری نہیں دی جائے گی۔ جب دھوبی نے کام نہیں کیا تو دام بھی نہیں پائے گا، جب کام نہیں تو دام نہیں۔ اگر دھلنے سے پہلے گم ہوا تو وہ مزدوری کا شرعاً مستحق نہیں ہے، اور دھلنے کے بعد گم ہوا تو وہ مزدوری کا مستحق ہے۔ تم نے یہ تفصیل نہیں بتائی اس لیے تمہارا جواب غلط ہوا۔ اب آپ بتاؤ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ جہاں نہیں پہنچ پا رہا ہے وہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا دماغ پہنچتا ہے۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے امام اعظم ابو حنیفہ کو اس دھرتی پر کیا، اور انہوں نے رسول پاک کی حدیثوں کو ایسا منضبط کر دیا، اور ان حدیثوں کی روشنی میں مسائل کا ایسا استنباط اور استخراج کیا، اور ایسے ایسے اصول اور قواعد بنا دیے کہ صبح قیامت تک جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوگا امام اعظم کے بنائے ہوئے اصول کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کر لیا جائے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو امام اعظم کے اجتہاد اور اصول کی روشنی میں حل نہ کیا جا سکے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ بہت پہلے امام محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں یہ بشارت ارشاد فرمائی تھی، اور خود اللہ کے نبی نے بھی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بشارت ارشاد فرمائی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے لو کان العلم عند الثریا لنالہ رجل من ابناء فارس، اگر علم ثریا کی بلندی پر بھی ہوگا تو فارس کا رہنے
रखने वाला उतार लाएगा और पूरी दुनिया में तकसीम कर देगा। फारिस में बड़े बड़े फुक़हा पैदा हुए, लेकिन कोई इमाम आज़म के शागिर्दों के बराबर भी नहीं पैदा हुआ। एक मरतबा इमाम आज़म अबू हनीफा ने अपनी जवानी में ख्वाब देखा कि मैं रसूल पाक की कब्र की मिट्टी को खोद कर इधर उधर फैला रहा हूँ। आज वहाबी ये ख्वाब देख लें तो सुबह को लड्डू बांटेंगे कि जो काम बेदारी में नहीं कर सका, चलो वो काम ख्वाब ही में कर दिया। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा का कैसा ईमान था, नबी की बारगाह का कैसा अदब था कि ये ख्वाब देखते हैं तो आप घबरा उठते हैं, बेचैन और बेकरार हो जाते हैं। आपके चेहरे पर एक रंग आता है, एक रंग जाता है। भागते हुए इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन की खिदमत में पहुंचे। इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन कौन है? अपने जमाने के जलील क़द्र इमाम हैं, हजरत अली के खलीफा हैं, हजरत अली के मुरीद हैं, और अपने जमाने में ख्वाब की ताबीर बताने में इमामत के दर्जे पर फाइज थे। ख्वाब देखने वाला अगर आता तो सिर्फ चेहरा देखकर बता देते इसका ख्वाब अच्छा है कि बुरा है। इमाम आज़म अबू हनीफा आपकी खिदमत में हाजिर हुए। कहा हुजूर बड़ा भयानक ख्वाब देखा है, जबान पर लाते हुए भी ईमान खतरे में महसूस हो रहा है। इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन ने गौर से उनके चेहरे को देखा और कहा अबू हनीफा तुम्हारा ख्वाब तो बहुत अच्छा है, अपनी जबान से ख्वाब बयान करो, मैं फौरन उसकी ताबीर बताता हूँ। इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया हुजूर मैंने ख्वाब देखा है कि अपने हाथों से रसूल पाक की कब्र की मिट्टी को खोद कर इधर उधर फैला रहा हो। इस ख्वाब को देखने के बाद मैं बेचैन और बेकरार हूँ। इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन ने कहा अबू हनीफा घबराने की जरूरत नहीं, बेचैन और बेकरार होने की जरूरत नहीं, तुम रसूल पाक की कब्र की मिट्टी को नहीं, रसूल पाक के इल्म को फैला रहे हो, रसूल पाक की शरीयत को फैला रहे हो, रसूल पाक की हदीस को फैला रहे हो, यही तुम्हारे ख्वाब की ताबीर। इमाम आज़म अबू हनीफा का मकाम बहुत बुलंद है, दुनिया में अब ऐसा इमाम नहीं आ सकता। इसलिए जरूरत है कि इमाम आज़म अबू हनीफा के इज्तिहाद को दुनिया के सामने पेश किया जाए। हर आदमी मुज्तहिद नहीं हो सकता। हर आदमी ये कोशिश करे कि मैं किताब सुन्नत से मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज कर लूं तो नामुमकिन है। इस दौर का बड़ा से बड़ा शेखुल हदीस, इस दौर का बड़ा से बड़ा मुफ्ती, इस दौर का बड़ा से बड़ा मुहक्किक भी अगर किताब सुन्नत की रोशनी में मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज करना चाहे तो हरगिज नहीं कर सकता। इसलिए कि इज्तिहाद करने के लिए सिर्फ अरबी जानना काफी नहीं है, हदीसों का गहराई से इल्म होना चाहिए और किताब सुन्नत का निहायत गहराई के साथ मुताला होना चाहिए। और सिर्फ किताब और सुन्नत का इल्म ही नहीं होना चाहिए, यह भी जानना चाहिए कि इसमें कौन नासिख है, कौन मनसूख है, कौन आम है, कौन खास है, कौन मुतलक है, कौन मुक़य्यद है, और यह भी जानना चाहिए कि इसमें कौन जाहिर है, कौन नस है, कौन मुफस्सर है, कौन मुहकम है, कौन खफी है, कौन मुश्किल है, कौन मुजमल है, कौन मुतशाबे है। जब तक इन तफसीलात का इल्म नहीं होगा आदमी किताब और सुन्नत से मसाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन आज गैर मुकल्लिदीन उर्दू की चंद किताबें पढ़ के मुस्तहिद बने कि हमको किसी इमाम की तकलीद की जरूरत नहीं, किसी इमाम की पैरवी की जरूरत नहीं, हम खुद किताब और सुन्नत से मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज कर लेंगे। उर्दू समझने की तमीज नहीं है और किताब और सुन्नत से मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज करेंगे। क्या किताब और सुन्नत से मसाइल निकालना इतना आसान है? बड़े बड़े मुहद्दिसीन किताबों से मसाइल न निकाल सके, बड़े बड़े फुक़हा किताबों से मसाइल न निकाल सके, लेकिन अल्लाह ने जिनको दर्जे इज्तिहाद पर फाइज किया था बल्कि इस्तिंबात की सलाहियत से सरफराज फरमाया था, उन्होंने उन्हीं हदीसों से मसाइल का बात और इस्तिखराज किया। और कभी कभी हदीसों में ऐसा तारुज और टकराव होता है कि अपने दौर का बड़ा से बड़ा मुहद्दिस और बड़ा से बड़ा फकीह भी उस तारुज और टकराव को दूर करना चाहे तो दूर नहीं कर सकता। आओ उसकी एक मिसाल मैं हदीस से पेश करता हूं। नबी करीम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए और उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह, रोजे की हालत में अपनी बीवी से मुबाशरत जायज है कि नाजायज है? मुबाशरत का माना है शौहर अपने नंगे जिस्म को बीवी के नंगे जिस्म से टच करे, लेकिन मुदाखलत ना हो, दुखूल ना हो, मुजामात ना हो, हम बिस्तरी ना हो तो मुबाशरत है, और हम बिस्तरी हो जाए तो मुजामात है, और कपड़ा ना उतरे तो मुलाबत है। ये अलग अलग इस्तिलाहें हैं। उन्होंने मुबाशरत के बारे में पूछा कि अगर शौहर अपने बीवी के नंगे जिस्म से अपने नंगे जिस्म को टच करे और हम बिस्तरी ना करे तो इतना करना रोजे की हालत में जायज है कि नाजायज है? रसूल पाक ने फरमाया जायज है। वो चले गए। दूसरे सहाबी आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, रोजे की हालत में अपनी बीवी से
से मुबाशरत जायज़ है कि नाजायज़ है? अल्लाह के नबी ने फरमाया नाजायज़ व हराम है। अब ज़रा गौर करो, सवाल एक है, सवाल की पोजीशन एक है, सवाल की नौइयत एक है, लेकिन जवाब दो तरह का इरशाद हो रहा है। अल्लाह के नबी ने पहले नंबर पर आने वाले सहाबी को जवाब दिया कि बीवी से मुबाशरत जायज़ है, और दूसरे नंबर पर आने वाले को जवाब दिया कि मुबाशरत नाजायज़ व हराम है। अब बताओ, इस दौर का बड़ा से बड़ा मुफ्ती भी फतवा देना चाहे तो इस हदीस के मुताबिक फतवा देगा कि उस हदीस के मुताबिक फतवा देगा। अगर कहता है मुबाशरत जायज़ है तो नाजायज़ वाली हदीस से एतराज होगा, और अगर कहता है मुबाशरत नाजायज़ है तो जायज़ वाली हदीस से एतराज हो जाएगा। किस पर फतवा दे? यही सवाल इमाम आज़म अबू हनीफा से हुआ कि आप बताएं, रसूल पाक की हदीस में तारुज़ और टकराव है, आखिर इस हदीस पर अमल किया जाए कि उस हदीस पर अमल किया जाए? इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया कि यहाँ कोई तारुज़ और टकराव नहीं है, ये दिमाग का कमाल है। अगर गौर करो तो यहाँ कोई तारुज़ और टकराव नहीं है। पहले नंबर पर जो सहाबी हाजिर हुए वो बूढ़े सहाबी थे, और बूढ़ों में कुव्वत शहवानियत कम होती है, वो अपने मिजाज को कंट्रोल में रखते हैं, अपने जज्बात को काबू में रखते हैं। वो अगर मुबाशरत करेंगे तो बात जिमा तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए रसूल पाक ने फरमाया जायज़ है। और दूसरे नंबर पर जो सहाबी हाजिर हुए वो नौजवान सहाबी थे। नौजवानों में कुव्वत शहवानियत ज्यादा होती है, वो अपने जज्बात को काबू में नहीं कर सकते, अपने मिजाज को कंट्रोल में नहीं कर सकते। उनको अगर मुबाशरत की इजाजत दे दी जाएगी तो बात जिमा तक पहुंच जाएगी, रोजा भी फासिद हो जाएगा, कज़ा और कफारा भी लाजिम हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि इनको मुबाशरत ही से रोक दिया जाए ताकि जिमा तक बात ना पहुंचने पाए। तो जिसको इजाजत दी वो बूढ़े सहाबी थे, और जिनको मना फरमाया वो नौजवान सहाबी थे। इसलिए हदीसों में कोई तारुज़ और टकराव नहीं। इस किस्म की हम मिसालें पे मुज्तहिदीन इज़ाम अइम्मा किराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा दिमाग दिया है, ऐसी सलाहियत अता फरमाई है कि ये अपनी खुदादाद सलाहियत से इस तारुज़ और टकराव को दूर कर लेते हैं। इसीलिए फुक़हाए किराम की अज़मत अल्लाह और रसूल की बारगाह में मुसल्लम है, और इसीलिए एक आबिद से शैतान को इतनी तकलीफ नहीं पहुँचती जितनी तकलीफ एक फ़क़ीह से पहुँचती है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद। एक फकीह हजार इबादत गुजारों से ज्यादा शैतान पर भारी है। इबादत गुजारों की इबादत से शैतान को तकलीफ होती है, लेकिन हजार इबादत गुजारों की इबादत से भी शैतान को उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ फकीह से होती है। इसीलिए इस दौर के शैतानों को, जिनको अहले हदीस कहते हैं, इमाम आजम से तकलीफ हो रही है, इसलिए कि फकीह हजार इबादत गुजारों से ज्यादा शैतान पर भारी होता है। जब जब ये इमाम आजम अबू हनीफा की शान में उंगली उठाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि इनका ताल्लुक शैतान से है, इसीलिए इमाम आजम इन पर बोझ बने हैं। इसीलिए इमाम आजम अबू हनीफा इनको पसंद नहीं आ रहे हैं, इन पर भारी हैं। अल्लाह के नबी ने ठीक ही फरमाया था, हजार इबादत गुजारों से ज्यादा एक फकीह शैतान पर भारी होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इमाम आजम अबू हनीफा के फैजान को और उनके रूहानी कमालात को पूरी दुनिया में आम से आम करे, और हमको इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबू दो शेर पढ़ना, शायरी नहीं दिखाना। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। काशे महशर में जब उनकी आमद हो, और काशे
سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام بھیجے، سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے غرض، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے غرض، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دعا کے لحاظ اٹھائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پروردگارہ کریمہ کارسازہ، اس بزم مقدس کو ہم سب لوگوں کے لیے ذریعہ نجات و مغفرت بنا دے۔ مولائے کریم و کارساز، رات کی اس آخری پہر میں ساری کائنات کے لوگ محو خواب ہیں، ہم گنہگار بندے تیری بارگاہ کی طرف ہاتھ اٹھائے ہیں۔ مولا جن کی جو بھی آرزو لے کر آئے ہیں سب پوری فرما دے۔ پروردگارہ کریمہ کارسازہ، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقہ و طفیل اس جامع خدیجۃ الکبریٰ کو دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما، تمام مسلمانوں کے دلوں کو اس کی طرف مبذول فرما دے۔ مولائے کریم و کارساز، ہم سب پر فضل فرما اور ہم سب کو مسلک اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرما۔ پروردگارہ کریمہ کارسازہ، مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کو علماء کرام کے سے فیض لینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ کریمہ کارسازہ، بیماروں کو شفا دے دے، مقروض کو بار قرض سے سبکدوش فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، باق لا الہ الا اللہ۔